operator, it shows the relation between two values, means which of value is greater, which is smaller. Okay, so that we have seen in our last lectures, some of the last lecture. So now in this code, we are printing some value that is decimal %d, and next to it we are not providing any single value. We are providing a relational operator equation that is comparison of two values, and in relational operator we are using a less than operator. हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? लेस देन ऑपरेटर. और मैंने आपको समझाया भी था कि लेस देन ऑपरेटर हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, all these operators are evaluated from left to right. Okay, so even though we are using a less than operator, that does not mean we can use the opposite operator and the equation will return us the same value. Now for this particular example, what we are doing, a left to right operation, that is left side value of the operator must be smaller than the value that is present on the right side. Okay, it should not be equal also. Okay, so in this case 10 is definitely less than 20 and we are using the less than operator, means it will return us the true value. And in the last sum of lectures I told you that the value can be represented by using true and false or 0 or 1. So if I execute this code, okay, we'll able to find that it is returning a value that is 1. ऐसे ही देखा था हमने जब हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे. यस सर. ओके, यस सर. यस सर. लेफ्ट हैंड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड वैल्यू से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं हम? लेस देन ऑपरेटर. ओके, लेस देन मींस लेफ्ट हैंड की वैल्यू लेस होनी चाहिए राइट हैंड से. राइट हैंड से. ओके, so here the 10 value is less than 20. Now we'll check like this 100. What is it? It returning 0. Okay, first of all take the screenshot of this code. Do you have taken the screenshot? Yes sir. Yes sir. Okay, fine. Yes sir. Now make the changes. We'll execute this code. Now take the screenshot. Okay, so the left hand value अगर ग्रेटर होती है तो वो क्या रिटर्न करेगा हमें? फॉल्स. फॉल्स मींस 0. You get that thing. For true we'll get one value, returning value as the 1, and for false we are will get the value as 1. 0. Okay, 0. sorry, 0. For true we'll get 1, for false we'll get 0. Okay, now what we'll do, we'll change the case. We are using which operator? Greater than operator. Greater than operator. Okay, now what this program should display? True. 1. 1. True means 1. 1. 1 sir. Okay, we'll check this. Okay, take the screenshot. Done. Taken sir. Okay. Now check the values. 10 is less than 20. We are getting 1. That is true. 10 is greater than 20. False. 0. 10 is greater than 20. No. 10 is
smaller than 20 and we are using greater than operator. So both things are not matching. That's why it is showing 0. 0. Now 10 is less than equal to 20. 1 sir. 1 क्यों आएगा? क्योंकि पहले क्या है, लेस देन है, तो वो इक्वल टू की तरफ नहीं जाएगा। पहले क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ओके, उसके बाद 10 इज ग्रेटर देन 20, पहला ऑपरेटर कौन सा है हमारा, ग्रेटर देन, तो वो फॉल्स हो गया। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू, लेकिन इक्वल टू भी नहीं है। दैट्स व्हाई बोथ केसेस आर फॉल्स। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग प्रिंटिंग वैल्यू एज 0। ओके, अभी इसको मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग में लिखना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मुझे एक्चुअल में क्या आउटपुट आता है, किस चीज का क्या आउटपुट है, ये दिखाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी, मैडम जरा पूछते now you can take the screenshot. It is somewhat looking better. Means what is the operator and what is the value of that particular operator with the respective values. सर पीपीटी चेंज नहीं हुई है। Your network may be slow. Okay, fine. Take the screenshot. Done, sir. Done. Okay. Now, can anyone tell me that what is the difference between this we have written here and this? इसमें difference क्या है? यहाँ पे जो लिखा है ये, इसमें सर वो इस डबल, बोलो सर वो डबल कोट्स के अंदर लिखा है अपन ने, तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, वो सिर्फ इंडिकेशन के लिए, और जो बाजू वाली स्टेटमेंट है वो we have written that particular thing, that is text, into double quotes, and as I always tell you that whatever written in double quotes other than special character will be print as it is. That's why we are printing, or we are getting in output 10 less than equal to 20, because it is written into double quotes and this is not written into double quotes. So what will happen, ये जो इक्वेशन है ये इवेल्युएट होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो किसके अंदर जाएगा, परसेंट डी के okay, fine. So did you get that what are the operations of the we can say what operators, relational operators. अभी यहाँ पे हमने क्या लिया है, 10 is equal to 10, यानी 10 10 के बराबर है या नहीं है। अगर हमने सिंगल इक्वल टू लिया होता तो क्या होता था, तो असाइनमेंट होता था। लेकिन हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज, दैट इज 10 is equal to 10। तो 10 10 के बराबर है क्या है, इसलिए वहां पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नाउ 10 is not equal to 20, 10 20 के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 1 क्यों 0 आएगी,
आएगी सर। ऑपरेटर क्या बोल रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऑपरेटर क्या बोल रहा है, दोनों वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्वल है क्या यहाँ पे? नहीं है। दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न अस ट्रू। यहाँ पे ऑपरेटर क्या बोल रहा है, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैल्यूज क्या है, इक्वल है। इक्वल है। दैट्स व्हाई विल गेट आउटपुट एज अ 0. Zero. So that are Zero. your what we can say these are what your relational operators. Now this relational operator will be beneficial in some of our new topic that will be going to cover in the next few lectures. So for this we are covering only this particular relational operator. Now we'll understand few more operators. For that, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes. 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 Okay. Now 10 is less than 20. इसकी वैल्यू क्या आएगी? True. True. Or 1. True या 1. Okay. Now I will not write both the values. I can write only true, otherwise 1. Okay. या false या उसकी वजह पे 0. Now इसके Zero. सामने मैंने और एक स्टेटमेंट लिखा 20 is greater than 10. इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? True. 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 Okay. अभी मैं क्या लिखता हूं, देखो, this is a new operator. Now what will happen here? This is called AND operator. Now this operator may be covered into your computer fundamental lecture, and how this is going to be operate I will tell you. AND का क्या होता है, इसको जब हम दोनों वैल्यूज ट्रू पास करेंगे, मींस 1 and 1, तभी वो क्या करेगा, 1 वैल्यू पास करेगा। अगर हम उसको दोनों वैल्यूज 0 पास करेंगे तो वो 0 पास करेगा। पहली वैल्यू 1 और दूसरी 0, फिर भी वो 0 पास करेगा। इस केस में भी वो 0 पास करेगा। नाउ दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एंड। ओके, ये एंड गेट वगैरह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर होंगे आपको तो वो हुए होंगे। ओके, सिमिलर टू दिस। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट एंड ऑपरेटर को जब हम दोनों वैल्यूज ट्रू पास करेंगे तब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, तो हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। इसका क्या वैल्यू आया 0, यानी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो हाउ एंड ऑपरेटर वर्क is according to this truth table. Means I can explain you in a different way, that is if
and only if both values are true, then and then AND operator will return true. If any of the value will 0 or false, it will return as the false values. Okay, so now we'll understand by our example. Once again I will repeat this. 10 is less than 20, इसका हो गया true. 20 greater than equal to 10, 20 greater than है तो इसका भी हो गया true. अभी true and true, true और true दोनों ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई. अगर मैं इस केस को थोड़ा सा उल्टा करता हूं, यहाँ पे जैसे मैंने 100 कर दिया, तो अभी 20 इज नॉट ग्रेटर देन 100, सो दिस वैल्यू विल बिकेम false. And if in AND gate, or we can say in AND operator, any of the value is false, then the final answer of AND will be false. Okay, now we'll understand by using actual program. Hash include stdio.h main printf %d comma 10 is less than 20, this is true, and 20 is greater than 10, this is also true, so we'll get true. Okay, take the screenshot of this program. Okay, just give me a minute, I will make small change. For what we are getting the 1, it should be displayed on the screen. Now you can take the screenshot. I can use a space also. Now you can take the screenshot. Now, similar to this, we'll add some new cases. Before that, I will add /n. Ten is equal to 20. Okay, 10 is equal to 10, not equal to 20. Before executing this program, I will ask you to solve these problems one by one. मैं जो भी अभी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वन बाय वन आप उसका आंसर निकाल के रखो. 100 is less than 20, that is false, and this is true. We'll keep it as it is. इसका आंसर क्या आता है वो देखेंगे. 200 100 Okay, so any of you have solved this problem?
Yes, sir. Okay, can you tell me the value of first? True. Just give me a minute. Hmm. 1. Next, True. please, if you are having any 1. surrounding sound, please turn off your mic. Other person who has solved this? ट्रू आएगा True. सर कमिट भी तो रन नहीं होगा ना। Next, फॉल्स आएगा सर जीरो False. false. Okay. Next, फॉल्स Again false. फॉल्स आएगा जीरो आएगा सर False. फॉल्स False. जीरो okay, very good. So you can take the screenshot. One 11000. Okay. Now this is for what? AND operator. AND operator हो चुका है कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में? No, sir. अभी तक नहीं No, हुआ. sir. Truth table. No, sir. Truth table. No, sir. No, In sir. 12th electronics. No, sir. No. Okay, fine. Okay, fine. 12 में हुआ है Tension sir. मत Truth लो। table. मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, क्लोज द डिस्कशन. मैंने डिस्कस किया है उसको व्हाइट बोर्ड पे. इट इज सिंपल लाइक इन हिंदी जिसको हम बोलते हैं और मराठी के अंदर बोलते हैं उसको आणी. ओके, जब हम बोलते हैं और दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं हमारे हिंदी में, और या. मराठी में आनी किंवा. ओके, नाउ फॉर एंड ऑपरेटर we'll use आनी इन मराठी एंड फॉर हिंदी we'll use और. ओके, यानी दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तभी उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. दोनों में से एक भी चीज अगर गलत होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है. और उसके अपोजिट, प्लीज टर्न ऑफ द माइक. एंड इन द अदर केस, दैट इज इन द और ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू होगी, दोनों की दोनों ट्रू होगी तो उसका आंसर ट्रू ही आने वाला है. लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू होगी तो उसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू ही आने वाला है. जैसे मराठी में हम उसको बोलते हैं, एंड को बोलेंगे हम आणी और को बोलेंगे किंवा. किंवा मीन्स एक ये चीज होगी तो ठीक, नहीं तो दूसरी भी अगर ट्रू होगी तो चलेगा. ओके, यानी दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए. फॉर किंवा या फिर या, जो हिंदी में हम बोलते हैं ये चीज या ये चीज, दोनों में से कोई भी चीज ट्रू होगी तो उसका आंसर ट्रू आएगा. लेकिन हिंदी में अगर हम बोलेंगे और मीन्स दोनों की दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए. तो समझ लो, ये जो एंड ऑपरेटर है हिंदी में हम उसको ट्रीट करेंगे और जैसा, और मराठी में बोलेंगे उसको आणि जैसा. की आणि मीन्स ही पण गोष्ट बरोबर यायला पाहिजे आणि ती पण गोष्ट बरोबर यायला पाहिजे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मूवी देखने को जाना है तो हमारे पास बाइक भी होनी चाहिए या ट्रैवलिंग का कोई एक चीज होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? टिकट के लिए पैसे भी होने चाहिए. जो बोलेंगे हम क्या? और, या मराठी में आनी. यानी दोनों चीज हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी हम मूवी देख सकते हैं. एक भी चीज उसमें से फॉल्स होगी, एक तो हमारे पास जाने के लिए कुछ बाइक वगैरह नहीं है और पैसे भी नहीं है. ओके, तो दोनों की दोनों चीजें अगर फॉल्स होगी तो हम क्या होंगे? मूवी को नहीं जा सकते. दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी, जैसे जाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैदल भी नहीं जा सकते, बहुत बड़ा डिस्टेंस है. चलो पैसे है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कोई चीज नहीं है जाने के लिए, व्हीकल नहीं है, तो हम मूवी देख सकते हैं क्या? No, sir. नहीं. ओके, दोनों की दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए. जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे जो हम लेक्चर ले रहे हैं. इन दिस लेक्चर वी शुड हैव अ मोबाइल एंड इंटरनेट. दोनों की दोनों चीजें होनी चाहिए, दैट इज एंड ऑपरेटर. मोबाइल एंड इंटरनेट. तो हम क्या कर सकते हैं? लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं. मैं बोल रहा हूं एंड को जो पैरेलल है हमारी मराठी और हिंदी में वो है और आनी. ठीक, तो एंड उसकी तरह से होगा. और जो दूसरा ऑपरेटर है, यानी जिसको मैं क्या बोलूंगा, अभी इसी एग्जांपल का हम क्या करेंगे? सिंपली इसको क्या करेंगे?
इसके नीचे मैं अभी इसको पेस्ट करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि और ऑपरेटर कैसे एग्जीक्यूट होता है। This is the operator sign for OR that is present on the enter key, above enter key. एंटर की के ऊपर दो सीधी वर्टिकल लाइंस नहीं होती है, हमें वो 2 बार लिखनी पड़ती। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी देखो इसका हम आउटपुट निकालेंगे। पहले ये चीज या ये चीज दोनों की में से एक कोई भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। अभी यहाँ पे 10 छोटा है 20 से। यस सर। यस सर। पहले अगर ट्रू होगी तो दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि एक दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर ट्रू। यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रू होगा, इसलिए दूसरा हम देखेंगे ही नहीं। दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाती है और ऑपरेटर में तो वो क्या करता है, ट्रू ही रिटर्न करता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, 100 इज लेस देन 20, इज इट करेक्ट? नो सर, फॉल्स। False. अभी इस केस में फॉल्स हो गया, लेकिन हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर है। हम दूसरी केस को चेक करेंगे। 20 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू। ट्रू। तो मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ट्रू ही आएगा। तो ये केस हमारे लिए क्या होगी, ट्रू हो गई। दैट्स व्हाई विल राइट हियर True. यहाँ पे देखो अभी ये क्या है, 1. ट्रू है। Yes, sir. हाँ, तो हम Yes, दूसरी केस में sir. जाएंगे ही Yes, नहीं, दूसरी केस में हम देखेंगे ही नहीं। ठीक, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखेंगे। नाउ दिस इज व्हाट, False. फॉल्स। और ये क्या है, ट्रू। फॉल्स है सर, ये भी। False, sir. ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। दोनों के दोनों फॉल्स है, तभी क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा। 0. Okay? हम अभी आउटपुट हमारा बराबर आता है या नहीं चेक करते हैं। आ रहा है बराबर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट। Done, sir. So this is what our operators in C, that is AND operator and OR operator. Okay. Also we have learned that is relational operator. इनकी जो भी वैल्यू है वो ट्रू और फॉल्स कैसी है वो हमने आज यहाँ पे सीखा। In the next lecture we'll learn how to use this value in some different cases. Okay.